ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 31 ਮਈ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਲਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗਸ, ਇਵੈਂਟਸ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੀਮਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। COVID-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ। ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪੀਜ਼। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਬਲੋਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਬਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਡੀਸ਼ਾ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੋਜ਼ਡ 50% ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ ਫੀ। 50% ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ ਫੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਕਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮ ਸਿੱਧੀ ਅਭਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੋਕਸ਼ ਕਲਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਰਾਜਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਟੂ ਲਾਂਚ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਫ ਆਲ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਰਜਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਫ PPE ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ PPE ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਚਾਈਨਾ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਮਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਕੈਨਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਫਰੇਮ ਡਿਟੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮਪੁਰਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बिग बाउंटी प्रोग्राम। बिग बाउंटी प्रोग्राम, एक बिग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा किस दे लई? आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन दे विच अगर कोई वलनेबिलिटी पाई जाती है तो उसनूं वलनेबिलिटी किन्ना द्वारा फाइंड की जाएगी? सब तो पहले सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा, सिक्योरिटी रिसर्चर्स या कह सकते हैं डेवलपर्स द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने फाइनेंशियल अवार्ड दिता जाएगा, उन्होंने फाइनेंशियल अवार्ड दिता जाएगा। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला की है? एक एनुअल फैसटिवल है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का एनुअल फैसटिवल है खीर भवानी मेला, जिसनों कैंसल किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के करके इसनों कैंसल किया गया। नेक्स्ट है यूनीसैफ। यूनीसैफ द्वारा पार्टनरशिप की गई एयरटेल अफ्रीका के नाल। एयरटेल अफ्रीका के नाल यूनीसैफ द्वारा पार्टनरशिप की गई टू सपोर्ट चिल्ड्रनस एंड फैमिलीज हू आर अफेक्टेड विद कोविड-19। कोविड-19 के नाल अफेक्ट होने वाली फैमिलीज और चिल्ड्रनस के लिए एयरटेल अफ्रीका ने यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की। CEO कौन ने एयरटेल अफ्रीका के? रघुनाथ मंडावा। और यूनीसैफ के हैड कौन ने? HH4। ये याद रखना है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया 5 लाख यूरोज। 5 लाख यूरोज प्रोवाइड करेगा यूरोपियन यूनियन किस दे लई? टू असिस्ट इंडिया डील विद साइक्लोन अम्फान। साइक्लोन अम्फान के कारण जी तबाही हुई है उसके नाल डील करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने किन्ने अमाउंट अनाउंस की? 5 लाख यूरोज इंडिया को प्रोवाइड की जाएगी। यूरोपियन यूनियन का हैडक्वार्टर कित्थे है? ब्रुसल्स बेल्जियम के विच। नेक्स्ट है 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स का 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट जिसनों होस्ट किया जाना सी रशिया द्वारा होस्ट किया जाना सी जुलाई दे विच। इसनों पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोरोना वायरस के करके रशिया दे विच होस्ट किया जाना सी 12th एडिशन ब्रिक्स समिट का, इसनों पोस्टपोन किया गया। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया 750 बिलियन यूरोज। 750 बिलियन यूरोज। करंसी याद रखनी है, करंसी कन्फ्यूजिंग पक्का की जाएगी। 750 बिलियन डॉलर्स भी लिखा होएगा, आपने याद रखनी है यूरोज के दी है। यूरोपियन यूनियन यूरो 750 बिलियन टू रेस्क्यू इकनॉमीज हैमर्ड बाय कोविड-19 के कारण जिन्होंने देशों की, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के देशों की गल करिए तो उन्होंने इकनॉमीज़ के उत्ते काफ़ी ज़्यादा असर होया, तो उन्होंने हैल्प करने के लिए 750 बिलियन यूरोज कौन प्रोवाइड करेगा? यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट मिसलेनियस न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस न्यूज़ के विच है सब तो पहले वैरी इंपोर्टेंट न्यूज़ है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा रैपो रेट चेंज किया गया सी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा कितनी कर दी गई सी? 4%। रैपो रेट कितनी कर दी है? 4%। रिवर्स रैपो रेट कितनी है? 3.35%। 3.35%। MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों कितनी ने? 4.25%। 4.25%। CRR कितनी है? 3%। CRR 3%। SLR कितनी है? 18%। SLR 18%। नेक्स्ट है नेपाल हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिटिकल मैप विच इंक्लूड्स इंडियाज लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल ने अप्रूव किया एक पॉलिटिकल मैप जिसदे विच इंडिया का लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा टैरेटरी के अंडर आंदा है। ठीक है जी। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी हैज़ डेवलप्ड मैथड्स टू प्रिवेंट मैमरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर के करके मैमरी लॉस नू प्रिवेंट करने के लिए अल्जाइमर के नाल की हो जाता है? मैमरी लॉस होना शुरू हो जाता है, परसन चीज़ां भुल्लण लग जाता है, तो उसनू रोकने के लिए मैथड्स डेवलप किए ने किसने? IIT गुवाहाटी ने। केड़ी IIT ने कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? केड़ी IIT द्वारा ये मैथड डेवलप किए गए हैं? IIT गुवाहाटी द्वारा। नेक्स्ट है द थीम ऑफ हुनर
ਹੁਨਰ ਹਾਟ 2020 की गल करते हैं। ਹੁਨਰ ਹਾਟ 2020 ऑर्गेनाइज किया जाएगा सप्टेंबर के ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट है 7 सर्विसेज होस्टेड बाय द साइट ऑफ IMD इंडियन मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके उत्ते 7 सर्विसेज इसकी जी वैबसाइट सी 7 डिफरेंट सर्विसेज नू होस्ट करती सी वैबसाइट। इसनू की किया गया उमंग एप्लीकेशन है इस दे नाल ज्वाइन किया गया। उमंग की फुल फॉर्म है यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस एप्लीकेशन नू बेसिकली लॉन्च किया गया सी 2017 दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नू 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इस तो इलावा सेबी के हैड का नाम याद रखना है अजय त्यागी और हैडकुआटर कित्थे है मुंबई दे विच हैडकुआटर है। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट इनोग्रेशन की गल करते हैं। जापान ने लॉन्च किया नवी स्पेस डिफेंस यूनिट स्क्वैड्रॉन नाम की स्पेस डिफेंस यूनिट किस दे लई टू मोनीटर एंड काउंटर थ्रैट्स टू द कंट्री सैटेलाइट। जापान की सैटेलाइट्स नू अगर कोई थ्रैट है तो उसनू मोनीटर करने दे लई और काउंटर करने दे लई स्क्वैड्रॉन नाम की नवी स्पेस डिफेंस यूनिट। ठीक है जी, स्क्वैड्रॉन स्पेस यूनिट। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिल्ड स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी। इंडिया ने इंडिया नाम की ट्रेनिंग फैसिलिटी बेसिकली ट्रेनिंग फैसिलिटी केड़ी कंट्री के लिए बनाई है युगांडा। ठीक है, या पूछा जाएगा युगांडा के विच एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई गई ओह केड़ी कंट्री ने बनाई है इंडिया ने। या पूछा जाएगा इंडिया द्वारा युगांडा के विच एक ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई गई उसका की नाम रखा गया इंडिया। ये याद रखना है। इसनू इनोग्रेट किया गया जनरल योवेरी कागुतो मोसीविनी प्रेसिडेंट ने युगांडा के प्रेसिडेंट द्वारा इसनू इनोग्रेट किया गया। युगांडा कैपिटल कंपाला है, करंसी इत्थे शिलिंग चलती है। युगांडा कैपिटल कंपाला, करंसी इत्थे शिलिंग चलती है। नेक्स्ट है जस्टिस ए के सिकरी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने इन्हां द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर नू किस द्वारा इनोग्रेट किया गया? जस्टिस ए के सिकरी द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर नू जस्टिस ए के सिकरी द्वारा कित्थे इनोग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली दे विच। नेक्स्ट है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की बनाया गया माइलस्टोन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई गई 440 मीटर की 4 धाम टनल। 440 मीटर की 4 धाम टनल BRO द्वारा किसने बनाई है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कित्थे बनाई है? ऋषिकेश धरासाऊ रोड के उत्ते। ऋषिकेश धरासाऊ रोड नैशनल हाईवे के उत्ते उत्तराखंड दे विच इसनू बनाया गया। अच्छा, इस दे नाल इसनू इनोग्रेट किया गया नितिन गडकरी द्वारा इसनू इनोग्रेट किया गया। नितिन गडकरी कौन ने? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। इस दे नाल MSME मिनिस्ट्री इन्हां लवे और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है फेसबुक ने लॉन्च की कैचअप एप्लीकेशन किस द्वारा लॉन्च की गई? कैचअप एप्लीकेशन लॉन्च की गई फेसबुक द्वारा कैचअप एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया। DRDO ने डेवलप किया आईना एक आर्टिफिशियल बेस्ड न्यू अटेंडेंस सिस्टम किस द्वारा डेवलप किया गया? DRDO द्वारा आईना नाम का एक नवा अटेंडेंस सिस्टम डेवलप किया गया। DRDO हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। जी सतीश रेड्डी इस दे हैड ने और 1 जनवरी
1958 1 जनवरी 1958 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NPCI ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? NPCI ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NPCI ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦਿਲੀਪ ਆਸਬੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MSME ਕੌਨਕਲੇਵ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਫॉर MSMEs in defense and aerospace sector। business continuity for MSME in defense and aerospace sector। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है RK सिंह भदौरिया। RK सिंह भदौरिया कौन ने? एयरफोर्स के चीफ ने। एयरफोर्स चीफ ने RK सिंह भदौरिया। इन्हों द्वारा लॉन्च किया गया स्क्वाड्रोन इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रोन, जिसनों कहा गया नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स विद अ फ्लीट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की गल की जाए। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कित्थे लॉन्च किया गया? सुलूर एयरबेस नियर कोयंबतूर तमिलनाडु दे विच। सुलूर एयरबेस कोयंबतूर तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है फर्स्ट फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट फेज कित्थे हैल्ड किया गया? न्यू दिल्ली दे विच। कित्थे हैल्ड की गई? न्यू दिल्ली दे विच कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन कौन ने? फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्यसभा MP ने करनाटका तो राज्यसभा MP ने। इन्होंने मीटिंग चेयर की। इन्होंने एक मीटिंग नूं हैड किया। मीटिंग किहड़ी सी? 22nd मीटिंग सी किसदी? फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल दी। फाइनैंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल दी 22nd मीटिंग नूं किन्ना ने हैड किया? फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करांगे। 2 इंपोर्टेंट बुक्स ने अपनियां इस वीक दे विच रिलीज़ की गई। सब तो पहले है मिडनाइट्स चिल्ड्रन नाम की बुक किस द्वारा रिलीज़ की गई? सलमान रशदाई द्वारा मिडनाइट्स चिल्ड्रन नाम की बुक नूं रिलीज़ किया गया। सलमान रशदाई द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन नाम की बुक नूं रिलीज़ किया गया। इस तो इलावा एक बुक रिलीज़ की गई द आइका बोग। इस बुक नूं रिलीज़ किया गया JK रोलिंग द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया द आइका बोग। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे आपां। सब तो पहले है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम नूं किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इनोग्रेट किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? मध्य प्रदेश द्वारा। जिस दे अंडर मनरेगा कार्ड इशू किए जाएंगे लेबरर्स नूं। मनरेगा कार्ड इशू किए जाएंगे लेबरर्स नूं। नेक्स्ट है मिजोरम कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मिजोरम की कैबिनेट ने की करिया? इंडस्ट्री स्टेटस दे दिता है स्पोर्ट्स नूं इंडस्ट्रीज़ का स्टेटस दिता है मिजोरम की कैबिनेट ने। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश दे विच की किया गया? रीस्टार्ट किया गया टू रिव्यू MSME सैक्टर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिज की गल करिए तो MSME सैक्टर नूं रिव्यू करन दे लई दोबारा तो एक तरीके नाल शुरू करन दे लई रीस्टार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट ने एक होर इनिशिएटिव लिया टू सप्लाई शाही लीची और जरदालू मैंगो
शाही लीची और जरदालू मैंगो नू डोर स्टैप ते प्रोवाइड करवाउण दे लई, डोर स्टैप यानी कि घर घर प्रोवाइड करवाने के लिए शाही लीची और जरदालू मैंगो कौन प्रोवाइड करवाएगा? बिहार स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने रिलीज़ की रिलीज़ अ रिपोर्ट हाईलाइटिंग इट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड हैज़ सेव ओवर 1100 रेयर प्लांट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। उसने एक रिपोर्ट जारी की जिस दे विच डिफरेंट कंजरवेशन एफर्ट्स उन्होंने शो किए और 1100 तो ज़्यादा रेयर प्लांट्स नू खत्म होने तो बचाया गया। 1100 तो ज़्यादा रेयर प्लांट्स नू खत्म होने तो एक्सटिंक्ट होने तो बचाया गया। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? उत्तराखंड द्वारा। करनाटका फार्मर्स। कर्नाटका के फार्मर्स ने पार्टनरशिप की फ्लिपकार्ट के नाल। कर्नाटका के फार्मर्स ने पार्टनरशिप की फ्लिपकार्ट के नाल किस दे लई? फॉर डिलीवरी ऑफ मैंगोज एट डोर स्टैप। मैंगोज की डिलीवरी के लिए घर घर मैंगोज की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट के नाल पार्टनरशिप की कर्नाटका फार्मर्स ने। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसने पार्टनरशिप की यूनीसैफ के नाल। यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की किस दे लई? टू डिलीवर असेंशियल प्रोडक्ट्स टू ट्री प्लांटेशन वर्क्स इन असम। असम दे विच ट्री प्लांटेशन के लिए असम दे विच टी प्लांटेशन के लिए असेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए यूनीसैफ के नाल पार्टनरशिप की हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी फर्म KKR। KKR की गल करिए, KKR ने इन्वेस्ट किए 11,367 करोड़ रुपए। 11,367 करोड़ रुपए टू बाय 2.32% इन जियो प्लेटफॉर्म्स। जियो प्लेटफॉर्म्स दे विच 2.32% बाय करने के लिए 11,367 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई KKR द्वारा। नेक्स्ट है WHO और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट ने मैमोरेंडम साइन किया किस दे लई? टू स्ट्रैंथन सपोर्ट ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नू रोकण दे लई, स्पोर्ट्स तो रोकण दे लई MOU साइन किया गया। WHO के हैड का नाम याद रखना है टेड्रोस एडानोम और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हैड का नाम याद रखना है थॉमस बैच। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च की मॉडिफाइड PM व्यय वंदना पेंशन स्कीम। PM व्यय वंदना पेंशन स्कीम, व्यय वंदना पेंशन योजना जी लॉन्च की गई किस द्वारा लॉन्च की गई? मॉडिफाइड लॉन्च की गई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ADB। गवर्नमेंट ने ADB के नाल एग्रीमेंट साइन किया किन्ने डॉलर्स का? सब तो पहले डॉलर्स का नाम याद रखना है 177 मिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट। 177 मिलियन डॉलर्स का एक एग्रीमेंट साइन किया गया ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाल टू अपग्रेड 450 किलोमीटर स्टेट हाईवेज नू अपग्रेड। महाराष्ट्र के स्टेट हाईवेज नू अपग्रेड करने के लिए ADB के नाल 177 मिलियन US डॉलर्स का एग्रीमेंट किया गया। नेक्स्ट है प्रकाश जावेदकर। प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है। इस तो अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। इन्होंने लॉन्च किया NBA UNDP इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड UNEP एंडेंजर्ड स्पीसीज कैंपेन। UNEP एंडेंजर्ड स्पीसीज कैंपेन किस द्वारा लॉन्च किया गया? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। नेक्स्ट है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। HRD मिनिस्टर कौन ने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। इन्होंने लॉन्च किया इग्नोज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम। इग्नोज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन हिंदी वाया फेसबुक टू स्ट्रैंथन पढ़े इंडिया ऑनलाइन। पढ़े इंडिया ऑनलाइन नू स्ट्रैंथन करने के लिए HRD मिनिस्टर द्वारा
हिंदी दे विच फेसबुक दे नाल मिल के इग्नोज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इग्नोज ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नैक्सट है फेसबुक ने पार्टनरशिप की सैमसंग दे नाल। फेसबुक हैज़ पार्टनर्ड विद सैमसंग। फेसबुक ने सैमसंग दे नाल पार्टनरशिप की टू ट्रेन ऑफलाइन रिटेलर्स टू गो डिजिटल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नैक्सट है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने किस नाल पार्टनरशिप की? चोलामंडलम। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी दे नाल पार्टनरशिप की टू ऑफर कस्टमाइज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग टू बायर्स। टू ऑफर कस्टमाइज्ड व्हीकल फाइनेंसिंग टू बायर्स। नैक्सट है अवार्ड्स। इंपोर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करते हैं। सब तो पहले अवार्ड है मनमीत कौर। मनमीत कौर नूं सिलेक्ट किया गया अमंग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज़। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज़ बाय यूके बेस्ड ग्रुप द सिख ग्रुप। द सिख ग्रुप यूके का एक ग्रुप है, यूनाइटेड किंगडम का एक ग्रुप द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटीज़ दे विच सिलेक्ट किया गया मनमीत कौर नूं। नैक्सट है मणिपुर खुडोल। मणिपुर दे खुडोल नूं, मणिपुर दे खुडोल, एक खुडोल का मतलब होंदा है गिफ्ट, सिलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनाइटेड नेशंस द्वारा अमंग टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स। टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स दे विच सिलेक्ट किया गया मणिपुर खुडोल फॉर एन इनकलूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के लिए इसनूं लॉन्च किया गया सी मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं, मणिपुर के एक NGO द्वारा यो ऑल NGO द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया सी। नैक्सट है मेजर सुमन गोस्वामी। मेजर सुमन गोस्वामी इन्हां नूं अवार्ड दिता गया यूनाइटेड नेशंस मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। यूनाइटेड नेशंस मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मेजर सुमन गोस्वामी। इन्हां ने सर्व किया सी UN मिशनस फॉर साउथ सुडान दे लई। UN मिशनस फॉर साउथ सुडान दे लई काम किया सी इन्हां ने मेजर सुमन गोस्वामी। इन्हां नूं अवार्ड किहड़ा दिता गया? यूनाइटेड नेशंस मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। नैक्सट है IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी। IBM के साइंटिस्ट राजीव जोशी नूं इन्वेंटर ऑफ द ईयर, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया फॉर हिज रिसर्च इन इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच अपनी रिसर्च के लिए इन्हों इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। किसनूं? राजीव जोशी नूं। कौन ने? IBM दे विच साइंटिस्ट ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है, इस दे विच साइंटिस्ट ने राजीव जोशी। नैक्सट आप चलते हैं इंपोर्टेंट डेज दे वल। सब तो पहले 22 मई, 22 मई नूं डे ऑबजर्व किया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। थीम रही सी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। 23 मई नूं आपां ने ऑबजर्व किया वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे कदों ऑबजर्व किया गया? 23 मई नूं। थीम रही सी अडोप्ट डोंट स्टॉप। अडोप्ट डोंट स्टॉप। नैक्सट है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला ऑबजर्व किया गया 23 मई नूं। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला कदों ऑबजर्व किया गया? 23 मई नूं। 23 मई नूं दो दिन डिस्कस किए, वर्ल्ड टर्टल डे और इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेरिक फिस्टूला। इसकी थीम रही सी एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टूला नाउ। एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टूला नाउ। नैक्सट है कॉमनवैल्थ डे। 24 मई नूं कॉमनवैल्थ डे ऑबजर्व किया गया। इसनूं बेसिकली एम्पायर डे भी कहा जाता है, एम्पायर डे, और कॉमनवैल्थ डे भी कहा गया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया की बर्थ एनिवर्सरी नूं ऑबजर्व करने के लिए इस दिन नूं मनाया जाता है। नैक्सट है 25 मई। 25 मई नूं आपां ने दो दिन डिस्कस किए। सब तो पहले वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई नूं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रनस डे।
इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रनस डे 25 मई ਨੂੰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਡੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂਸੂਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਮੈਂਸੂਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਡੇ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 28 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨ ਪੈਂਡੇਮਿਕ। 29 ਮਈ इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स वेरी इंपॉर्टेंट डे है। 29 मई इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। इसकी थीम रही सी वूमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। वूमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस इसकी थीम रही सी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। कुछ अपॉइंटमेंट डिस्कस करांगे। सब तो पहले है कार्मन रेनहार्ट। कार्मन रेनहार्ट नेम्ड एज चीफ इकनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की गल करिए, वर्ल्ड बैंक के हैड ने डेविड मलपास। 189 मैंबर कंट्रीज़ ने और वाशिंगटन DC के हैडकुआटर है। और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए। चीफ इकनॉमिस्ट अपॉइंट किए गए। कौन ने चीफ इकनॉमिस्ट? कार्मन रेनहार्ट। कार्मन रेनहार्ट। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO का नाम भी याद रखना है, अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO ने। नेक्स्ट है जन्हाबी फूकान। जहनाबी फूकान यह अपॉइंट किए गए नैशनल प्रेजिडेंट ऑफ फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO। FLO की गल करिए फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। फीकी की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के नैशनल प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? जहनाबी फूकान। इस तो इलावा फीकी के हैड कौन ने? संगीता रेड्डी। फीकी के हैड ने संगीता रेड्डी। नेक्स्ट है डॉग लेवोरो। डॉग लेवोरो चीफ सीगे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफ नासा दे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑफ नासा दे। इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट तो। इन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट तो। नेक्स्ट है आभास झा। आभास झा अपॉइंट किए गए वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा आभास झा। आभास झा कौन ने? एक इंडियन इकनॉमिस्ट ने। इन्हों अपॉइंट किया गया क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया के। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया किन्हों द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। आभास झा नाम याद रखना है, आभास झा। नेक्स्ट है टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी चेयर्ड बाय राजेश भूषण। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम नू रिफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसनू चेयर किया गया राजेश भूषण द्वारा। कमेटी नू हैड किस द्वारा किया गया? राजेश भूषण द्वारा। जीन फ्रैंकोइस बॉक्समीर। जीन फ्रैंकोइस बॉक्समीर अपॉइंट किए गए वोडाफोन के नवे चेयरमैन। वोडाफोन के नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? जीन फ्रैंकोइस बॉक्समीर। नेक्स्ट है मार्कोस त्रियोजो। मार्कोस त्रियोजो सब तो पहले कितों बिलोंग करते हैं? ब्राज़ील तो। ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं मार्कोस त्रियोजो। मार्कोस त्रियोजो नू अपॉइंट किया गया नवा प्रेजिडेंट NDB का। न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक की गल करिए इसके नवे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इन्हों की अपॉइंटमेंट शुरू की जाएगी जुलाई तो। जुलाई तो इन्हों की अपॉइंटमेंट शुरू की जाएगी। मार्कोस त्रियोजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवे हैड अपॉइंट किए जाएंगे KV कमात की टैन्यूअर तो खत्म होने तो बाद। इस तो इलावा वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए इंडिया के अनिल किशोरा। अनिल किशोरा वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए NDB के। नेक्स्ट है प्रेम के नारी। प्रेम के नारी अपॉइंट किए गए हैं इंडियाज़ नैक्सट एंबेसडर टू नाइजीर। नाइजीर कंट्री के इंडियन एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं प्रेम के नारी। प्रेम के नारी। नाइजीर कैपिटल नायमे करंसी ईको चलती है। नाइजीर कैपिटल नायमे करंसी इत्थे ईको चलती है। इस तो इलावा नाइजीर के प्रेजिडेंट ने मोहम्मदऊ यूसुफजो। मोहम्मदऊ यूसुफजो। नेक्स्ट है P कुमारन।
पी कुमारन अपॉइंट किए गए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सिंगापुर। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सिंगापुर कौन अपॉइंट किए गए? पी कुमारन। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रेसिडेंट। इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रेसिडेंट कौन ने? नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रेसिडेंट ने। इन्हों अपॉइंट किया गया रिसेंटली एज अ मैंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन। ओलंपिक चैनल कमीशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, सॉरी मैंबर ओलंपिक चैनल कमीशन के मैंबर अपॉइंट किया गया इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा। नैक्सट है इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन ने की होर किया इन्होंने एक कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी किस दे लई? टू मोनीटर एनुअल ग्रांट्स और एफिलेशन फी। एनुअल ग्रांट्स ते एफिलेशन फीस नू मोनीटर करने दे लई एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिल सुमनरीवाला। एक कौन ने? एक प्रेसिडेंट ने एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया दे। एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया दे प्रेसिडेंट एडिल सुमनरीवाला दे चेयरमैनशिप दे अंडर एक कमेटी बनाई गई, जिहड़ी की कमेटी किस द्वारा बनाई गई? इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन द्वारा, जिहड़ी मोनीटर करेगी एनुअल ग्रांट्स और एफिलेशन फीस 2020-2021 के लिए। ठीक है जी। नैक्सट है स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करेंगे। सब तो पहले 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स शेड्यूल्ड टू बी हैल्ड इन अक्तूबर-नवंबर दे विच हैल्ड किया जाना सी 2020 दे विच गोवा दे विच हैल्ड किया जाना सी, पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड-19। नैक्सट है ICC ने 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वैबीनार सीरीज़ नू लॉन्च किया टू सैलीब्रेट वूमेंस क्रिकेट नू सैलीब्रेट करने के लिए। ICC हैडकुआटर दुबई दे विच है। शशांक मनोहर इज द हैड ने और CEO ने मनु सोहने। लैजेंडरी हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर इन्हां दी डैथ हो गई है। किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते थे? ये हॉकी तो। यह 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मैडल रह चुके हैं 1948, 1952 और 1956। ही इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने पद्म श्री दिता गया सी। फर्स्ट स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने पद्म श्री अवार्ड दिता गया सी 1957 दे विच। इन्हों मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिता गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिता गया 2015 दे विच। नैक्सट है 8 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर, 8 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे एशले कूपर। इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। नैक्सट है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन की अगर आप गल करिए, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान के नाओमी ओसाका वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बने ने। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन बने ने? जापान के नाओमी ओसाका। टेनिस प्लेयर जैमी हैम्पटन ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? USA तो। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं ये? USA तो। नैक्सट है स्पेन के एरिट्स एडूरिस ने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है फुटबॉल तो। एडिस एडूरिस किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? फुटबॉल तो। और किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? स्पेन तो। नैक्सट है क्रिकेटर शहान मधुशंका सस्पेंडेड फ्रॉम क्रिकेट। ये कित्थों बिलोंग करते हैं? श्रीलंका तो क्रिकेटर ने शहान मधुशंका सस्पेंड किए गए हैं क्रिकेट तो। नैक्सट है मीराबाई चानू वेट लिफ्टर ने। कौन ने? वेट लिफ्टर ने। इन्हों खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी 2018 दे विच। 2018 दे विच खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी और पद्म श्री भी दिता गया सी 2018 दे विच। इन्हों नॉमीनेट किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए।
अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमीनेट किया गया। नैक्सट है सीए भवानी देवी। सीए भवानी देवी नूं भी अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमीनेट किया गया किस द्वारा? फेंसिंग एसोसीएशन ऑफ इंडिया द्वारा। फेंसिंग एसोसीएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंपोर्टेंट है क्योंकि यह फर्स्ट फेंसिंग प्लेयर ने जिन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमीनेट किया गया। फर्स्ट फेंसिंग प्लेयर ने जिन्होंने अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमीनेट किया गया। किहड़ी सिटी तो बिलोंग करते हैं? चेन्नई तो। चेन्नई तो बिलोंग करते हैं। कित्थों बिलोंग करते हैं? चेन्नई तो। अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।